بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، چکوال شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے، ساتھ ساتھ یہ اہل علم و ادب کا بھی یہ گہوارہ ہے. بابا شاہ مراد سے لے کر کرنل محمد خان بجنگ احمد اور پھر آج کے جو لکھاری ہے، زندہ ادب تخلیق کر رہے ہیں. یہی ہمارا فخر ہے. اور چکوال کی سرزمین پر جس طرح آپ روزانہ سنتے ہیں، نئے نئے لکھاری ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. اور پھر یہاں کا شرح تعلیم دیکھیں تو یہاں کے لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، ادب نواز بھی ہیں اور ادب سے محبت کرنے والے. یہی وجہ ہے کہ اس خطے میں ہمیشہ بڑی بڑی تقاریب منعقد ہوتی رہی ہیں، بڑے بڑے مشاعروں کا انعقاد کیا گیا. چکوال پریس کلب نے ہمیشہ ادب کی اور ادیبوں کی عزت بھی کی ہے، کوشش کی ہے کہ ان کا جو اصل مقام ہے وہ اس کو بحال رکھا جائے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ خطرے میں جو ہے وہ ہمارا ادب اور ہمارے ادیب ہے. جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا سامنے ہے. یہی وجہ ہے کہ کتابوں سے کچھ دوری ہوتی جا رہی ہے. چکوال پریس کلب نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی ہے کہ کتابوں کے ساتھ دوستی کو برقرار رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ اسی لائیو اسٹوڈیو سے ہم مختلف کتابوں کی جو رونمائی کی تقاریب ہے وہ بھی لائیو دکھاتے ہیں. اور جو خاص طور پر ہمارا لائیو مشاعرے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو بہت پسند کیا جا رہا ہے. آج کی جو محفل سجنے والی ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گی. ہمارے معزز مہمان جو کہ کتاب کے شعراء بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں اور بہت ہی علم دوست شخصیات ہیں، بڑے دور سے تشریف لائے ہیں. لاہور سے یہ سب لوگ یہاں لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ کے سامنے کلام بھی رکھیں گے. میں صرف مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ویسے تو یہ اپنا تعارف خود ہیں، لیکن جو لوگ اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ آج یہ جو لائیو مشاعرہ ہے اس کی صدارت محترمہ تسنیم تصدق صاحبہ کر رہی ہیں، جو کہ بانی حلقہ تصنیف ادب کی میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ یہاں تشریف لائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان خصوصی موجود ہیں محترم محمد سلیم ہاشمی صاحب. یہ بانی ہیں عالمی سفینہ ادب کے اور تحریک پاکستان قومی زبان اردو. اس سے پہلے بھی یہ یہاں تشریف لا چکے ہیں. ہاشمی صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ یہاں لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہمارے مہمان اعزاز جناب شوکت علی ناز صاحب، جن پر ہمیں بھی ناز ہے، سب کو ناز ہے، یہاں تشریف فرما ہے، صاحب کتاب ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. صاحب کلیم جان صاحب، آپ ہماری بھی جان ہیں، ادب کی جان یہاں پر موجود ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے اپنے صفی صاحب یہاں موجود ہیں، صفی الدین صفی صاحب، آپ کا بھی شکریہ. خواجہ دانیال سلیم موجود ہے اور لائیو اسٹوڈیو آج بھرا ہوا ہے. سب منتظر ہیں کہ آج یہ جو ہمارے مہمان ہیں یہ کلام کس وقت پیش کرتے ہیں. تو اس لیے میں زیادہ ان کے اور آپ کے درمیان رکاوٹ نہیں بنوں گا. میں اپنے جو ہمارے صاحب کتاب 6 کتابوں کے مصنف ہیں، چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم تمغہ امتیاز بھی ہیں، اور آج جو اس وقت مشاعرے برپا ہو رہے ہیں، جو یہاں پر تقاریب ادبی ہو رہی ہیں، سب کی جان ہے خواجہ بابر سلیم. ان سے التماس کروں گا کہ وہ اس تقریب کو آگے بھی بڑھائے، مہمانوں کو خوش آمدید دیتے. خواجہ بابر سلیم. 12 یہ 8 دسمبر بالکل یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا شکر گزار ہوں. ابھی جب لاہور کی بات آئے تو ابھی وہ پہلے سموگ اور دھند، اور یہ ابھی آنے والے 2-3 مہینے بڑے ولنریبل ہیں. اور کوئی بھی اگر دیکھا ہے پروگرام کبھی بھی تو یہ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ دیکھیں آج بھی ہوئے. اور صبح آج بڑا چمکیلی دھوپ اور سارا، تو ایک دم آج صبح سے چکوال میں بھی دھند اور سارا، تو وہ سارا میں بڑا شکر گزار ہوں تمام میڈم ہاشمی صاحب، ناز صاحب اور صاحب کلیم جان، آپ صاحب تشریف لائے ہیں. دوبارہ یہ ایک زبردست مطلب ہے یہ مشاعرہ جو ہے یہ اس کے، کیونکہ ابھی سارا یہ بات مشاعرے کی ہے. یہ میں صاحب صدر کی اجازت سے 2-3 شعروں سے آج کے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں. دستور بزم حسن بڑا لاجواب تھا. دستور بزم حسن بڑا لاجواب تھا، جو بے گناہ تھا وہی زیر عذاب.
बेगुनाह था वही तेरे अताब था, शायद कि तुझको याद भी आता न हो कभी, शायद कि तुझको याद भी आता न हो कभी, राहे वफा में कौन तेरा और ये जरा शेर देखें जी, आईना ए ख्याल में, आईना ए ख्याल में अक्फे जमाले यार, आईना ए ख्याल में अक्फे जमाले यार, आबे रवा पे बहता हुआ एक गुलाब। ये बड़ी पुरानी गजल है, ये गजल देखे तो मैं साथ हवाला देना चाहिए। तो वो पहला मुशायरा 1986 में उधर सरमत से भाई मेरे मामू हैं जी, तो वो सारा PTV पे बड़ा अच्छा, वो नहीं तो इधर मैं उधर प्रोड्यूसर के साथ मेरा झगड़ा हुआ, वो कहता है जी ये पूरे मुल्क तो आए शायद, मैं कहा मेरा जब मुझे बुलाया जाए तो मेरा चकवाल हाथ में थे, तो वो अड़ गया जी, वो कहता है के तो मैंने फिर अपने मामे का जो रोदा योदा था उसका मैं कहा ਤੁਹਾਡੀ आती जाती तरकीब शाकर उसकी निजामत कर रही है, उनकी तो शादी PTV पे लाइव जा रहा है, ये वो तो उस मुशायरे में, ये उधर उस मुशायरे में ये आबे रवान, ये एक पुरानी नज़म, ये गिरा है ये तो उस वक्त कॉलेज के मुशायरों में एक गिरा थी, आईना एक ख्याल में सबसे जमाले यार, आबे रवान पे बहता हुआ एक गुलाब था। और इस शेर पे तो वो परवीन छाकर मैंने कहा कि ये पता चले ना कि चकवाली जो है, और मैं तमाम ये मेहमान आए हैं, चकवाली दुनिया के जिस कोने में भी, बिल्कुल लंदन अमेरिका जिधर है वो ऐसे बताता है कि मैं चकवाली हूँ। ये मेरे मैं 40 साल से 6 किताबें लिखी हैं, ये तारीख है, ये खत्ते की तारीख है, ये हैरत अंगेज सरजमीन है। बाबा फरीद की दुआ, मैं तो पता नहीं किस किस की दुआ है, सूफियों वलियों की जब हम बात कर रहे हैं तो बाबा फरीद सारे बीच है, मुरादा बीच है, ये शेर मुरादा करेंगे उस वक्त छाकर ने जिस पे अगर कहा तो वो यकीनन ये मुरादा करें मैडम। लम्हाए रोजगार ने, लम्हाए रोजगार ने गुमसुम किया मुझे, लम्हाए रोजगार ने गुमसुम किया मुझे, मैं भी तेरी तरह कभी हाजिर जो किया तेरी तरह कभी, और बाबर किया था जिसका ताकत तमाम उम्र, बाबर किया था जिसका ताकत तमाम उम्र, देखा करीब से तो वही एक में हुस्न बड़ा लाजवाब था, तो बेगुनाह था वही तेरे। तो अब मैं बिलाता हीर गुजारिश करूंगा, शायर इनकलाब है जी ख्वाजा और ये माइक कर लेके तो अपना गाना भी थोड़ा सा मेरी गुजारिश होगी, मौलवी अलग दीन नफीस के हवाले से आप अपना थोड़ा सा मेहमानों को अपना करवाएं। मौलवी अलफ दीन नफीस के खानवादे से तल्लक है मेरा। मौलवी अलफ दीन नफीस शायरी में एडवोकेट थे। 1890 इलामा इकबाल के शायरी के उस्तादों में है, किताबों में ये जिक्र है। तो वो मेरे वालिद के नाना थे मौलवी अलफ दीन नफीस, सियालकोट से तल्लक। तो एक कोर्स में एक वो था नज़म थी, इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर, 8वीं के कोर्स में वो लिखने वाले असर सबाई थे, वो मेरे नाना थे। और सरमत सबाई मेरे मामू है, बड़ा शायरी में ड्रामा में बहुत बड़ा नाम है, वो मेरे मामू है। तो मैं कहता हूँ कि हम शायरी ना भी करें तो हमसे शायरी तो सरदारी हो जाती है ऐसे ही, क्योंकि ऐसे खानदान से तल्लक है। तो वो 2-3 कोई अभी ताज़ा जो है ना वो नहीं, आज हमारा पंजाबी का प्रोग्राम होता है प्रेस क्लब में संडे को जो है ना,
تو وہ تھا، مگر پھر بھی جو یاد تھے جو بھی چیزیں وہ ایک چھوٹی چھوٹی نظم تو اشعار جو ہے وہ اس طرح جی کہ ذرا راجہ صاحب اور آپ بھی اچھا کچھ بھی نہیں اپنی جان سے پہلے، بڑا اچھا کچھ بھی نہیں اپنی جان سے پہلے، بیٹھ کشتی میں طوفان سے پہلے، کشتی میں طوفان سے پہلے، عجیب رنگ میں اپنے شہر کا موسم تھا، عجیب رنگ میں اپنے شہر کا موسم تھا، پرندہ ہانپ گیا تھا اڑان سے، ایک شخص کی محبت میں ایک معجزہ ایسا ہوا، ایک شخص کی محبت میں ایک معجزہ ایسا ہوا، سحر کو روک دیا تھا اذان سے، سحر کو روک دیا تھا اذان سے پہلے۔ تو یہ دو تین شعر تھے، چھوٹی سی نظم، ساری صنف جو ہے شاعری کی تھوڑا تھوڑا اس میں بسم اللہ کہ جلوہ، اس کا عنوان ہے جلوہ، چھوٹی سی نظم ہے۔ جب آدمی اپنے قد سے بڑھ جائے، جب آدمی اپنے قد سے بڑھ جائے اور ظلم اپنی حد سے بڑھ جائے، تب مقدس کتابیں کھلتی ہیں اور چھٹی حص کی تنابیں کھلتی ہیں، پھر خدا روح کے بھیس میں ایک روحانی سے دیس میں، کسی مسجد اور مندر سے، کسی آدمی کے اندر سے جلوہ دکھاتا ہے، دو پنجابی دے ساڑھا اچھا تسی کہہ رہے سو ایک شہر پہلے معرفت ایک نظم لکھی جائے پنجابی دے کہ ذرا معرفت ذرا غور کر سو پروفیسر صاحب۔ پیار دی گھانی مٹھے پانی ناگ بنا کے، پیار دی گھانی مٹھے پانی ناگ بنا کے، معرفت دا تھوڑا بھو رلا کے، عشق دی اٹا پائیے، عشق دی اٹا پائیے، وت ہاڑ دی دھپے، دکھان دے رکھے سکھاں تھلے، فرشتیاں دے جتھے پر سڑ ویندے، اس جائیں تکڑ تول کے تکیے، وت ہاڑ دی دھپے، دکھاں دے رکھے سکھاں تلے، دکھاں تلے، فرشتیاں دے جتھے پر سڑ ویندے، اس جائیں تکڑ تول کے تکیے۔ اور اب میں گزارش کروں گا جناب مرد فقیر دین تقی صاحب کتاب اور بالکل غزل اور ماشاءاللہ مرد فقیر دین تقی، بہت شکریہ جی۔ جی صاحب صدر کی اجازت سے، کبھی تو پاؤں میرے پتھروں سے الجھے ہیں، کبھی تو پاؤں میرے پتھروں سے الجھے ہیں، کبھی میں ٹوٹے ہوئے آئینوں سے گزرا ہوں، کبھی تو پاؤں میرے پتھروں سے الجھے ہیں، کبھی میں ٹوٹے ہوئے آئینوں سے گزرا ہوں، اور کسی نظر نے چھوا نہ یہ تیرا موم بدن، کسی نظر نے چھوا نہ یہ تیرا موم بدن، میرا اعزاز تیری دھڑکنوں سے گزرا، کسی نظر نے چھوا نہ یہ تیرا موم بدن، میرا اعزاز کہ تیری دھڑکنوں سے گزرا۔ پروفیسر محمد خان استان کی فرمائش پر پرانی غزل کے چند اشعار، ہر جبر مسلسل میں تنویر نہیں ہوتا،
مسلسل میں تنویر نہیں ہوتے، یہ زخم کسی کی بھی جاگیر یہ زخم کسی کی بھی جاگیر نہیں ہوتے۔ اور صاحب صدر شعر ہے کہ اشکوں سے بجھے شاید پلکوں کے حوالے سے، اشکوں سے بجھے شاید پلکوں کے حوالے سے، لمحوں سے تو یہ سورج تذکیر نہیں۔ اشکوں سے بجھے شاید پلکوں کے حوالے سے، لمحوں سے تو یہ سورج تسخیر نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زخموں کو جگاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زخموں کو جگاتے ہیں، سب لہجے محبت کے اکسیر، سب لہجے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زخموں کو جگاتے ہیں، سب لہجے محبت کے اکسیر نہیں ہوتے۔ اور انڈیا اور پاکستان میں مقبولیت حاصل کرنے والا ایک شعر ایک نغمہ کے ساتھ انڈیا سے سنایا جاتا ہے، وہ شعر جو میری شناخت بن گیا، پہچان بن گیا کہ ہر خواب مکمل ہو لازم تو نہیں، ہر خواب مکمل ہو لازم تو نہیں ہوتا، کچھ تاج محل اکثر تعمیر مکمل ہو لازم تو نہیں ہوتا، کچھ تاج محل اکثر تعمیر نہیں ہوتے۔ ہاشمی صاحب، آنکھوں میں اترتی ہے شبنم سی صفی اکثر، آنکھوں میں اترتی ہے شبنم سی صفی اکثر، ہم شام غریبہ کی تصویر نہیں، ہم شام غریبہ کی تصویر نہیں۔ آخری دو اشعار سنا کے اجازت چاہوں گا کہ مہمان شعراء کرام کو سننا ہے۔ جی بسم اللہ۔ کہ لمحوں میں غرق ہو گئی اب کشتی وجود، لمحوں میں غرق ہو گئی اب کشتی وجود، اس نے ہی ساحلوں سے اشارہ دیا، لمحوں میں غرق ہو گئی اب کشتی وجود، اس نے ہی ساحلوں سے اشارہ نہیں کیا، ہنس ہنس کے ہم نے دار گلے سے لگا لیا، ہنس ہنس کے ہم نے دار گلے سے لگا لیا، ذلت کے ساتھ جینا گوارا طاہر کلیم جان صاحب پہ یہ آج کے یہ مشاعرے کے جو ہیں یہ رواں ہیں طاہر کلیم جان، اور ان کی ادبی اور ان کا یہ ایک بڑا یہ بھی یاد ہے کہ یہ ہندوستانی فلم میں ان کا ایک یہ حدیث نگار ہے گارا، میں طاہر کلیم جان سے گزارش کروں گا کہ جی بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت سے۔ ایک گیت جو بہت عرصے قبل تقریباً 24 سال پہلے لکھا گیا تھا، اب وہ میرا نہیں رہا، پوری دنیا کا ہو چکا ہے، ہندوستان اور پاکستان کا ہو گیا، تو وہ گیت جو ہے لکھا تو ضرور تھا لیکن سنایا نہیں تھا، آج جو ہے وہ آپ کی نظر وہ گیت تیری مٹی میں مل جاواں، تیری مٹی میں مل جاواں، گل بن کے میں کھل جاواں، اتنی سی ہے دل کی آرزو، تیری ندیوں میں بہ جاواں، تیرے کھیتوں میں لہراواں، اتنی سی ہے دل کی آرزو، اے میری زمین افسوس نہیں جو تیرے لیے 100 درد سہے، اے میری زمین افسوس نہیں جو تیرے لیے 100 درد سہے، محفوظ رہے تیری آن صدا چاہے جان میری یہ رہے نہ رہے۔
वाह 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 ऐ मेरी जमीन महबूब मेरी, हाँ। मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। बहुत ऐ मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल कर खून कहे। ओ वतना वे मेरे वतना वे, ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। ये उस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क था, तो ये वतन की वो मोहब्बत थी। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे, मैं कितना नसीबों वाला। और जब अपनी सरजमीन से, अपने मुल्क से, अपने गांव से बंदा दूर होता है तो उसके वो क्या जज्बात होते हैं। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। जीवन अपनी मिट्टी से मोहब्बत के और देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। और देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे नखवाले। और हीर मेरी, ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। और जब वतन से दूर होता है बंदा तो माँ बाप जो है उसकी मोहब्बत में आंसू बहाते हैं। तो वो क्या, उसके क्या जज्बात है, कहता है ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। बहुत अच्छे। और एक गजल का एक मतला और दो शेर। सहर शाम ये आशियां करते करते, सहर शाम ये आशियां करते करते, जो हम थक गए पंखियां करते करते। गर्मी का शेर। जो हम थक गए पंखियां करते करते, मोहब्बत मोहब्बत क्या है मोहब्बत, मोहब्बत मोहब्बत क्या है, मोहब्बत मोहब्बत क्या है मोहब्बत, फकत उम्र गुजर गई बयां करते करते, फकत उम्र गुजर गई बयां करते करते। और बुराई कहाँ तक, बुराई कहाँ तक निभाएगी हमें, बुराई कहाँ तक निभाएगी रस्में, बुराई कहाँ तक निभाएगी रस्में, सदी बीत जाएगी फगा करते वो वादा वफा फिक्र तो अब कीजिए, वो वादा वफा फिक्र तो अब कीजिए। अजर आ गया है ज़बां करते करते, गुलाबों से तेरी है मट्टी की रौनक, गुलाबों से है तेरी मट्टी, गुलाबों से है तेरी मट्टी की रौनक।
हवा रुक गई हिचकियां करते बहुत शुक्रिया। ये तारीकी जीनत फलक शब सितारे, ये तारीकी जीनत फलक शब सितारे गुवाई बिया आसमां करते करते। बड़ा अच्छा है। और शेर काबिल गौर है, हो फिरदौस मुयस्सर जहन्नम के बदले, हो फिरदौस मुयस्सर जहन्नम के बदले कटी उम्र सारी गुमा करते कटी उम्र सारी गुमा करते करते मुल्ला मना करे मैं है बुराई, मुल्ला मना करे मैं है बुराई, क्या है खबर दिलो जा करते करते, क्या है खबर दिलो जा करते करते खुदा ने कहा मत पियो खमर साहिर, खुदा ने कहा मत पियो खमर साहिर, ये नहरे जन्नत मेहरबां करते करते। हमारे मेहमान आजाद अहले चकवाल का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ बुलाया और हमें अपने शेर सुनाने का मौका दिया। मगरूर खुदनुमा, जनाब सदर की इजाज़त से, मगरूर खुदनुमा कभी खुद सर कहा गया, मगरूर खुदनुमा कभी खुद सर कहा गया, मैं मोम था मगर मुझे पत्थर कहा गया। मगरूर खुदनुमा कभी खुद सर कहा गया, मैं मोम था मगर मुझे पत्थर कहा गया, और ताले मेरी जुबान पर लटका दिए गए, ताले मेरी जुबान पर लटका दिए गए, फिर उसके बाद मुझसे मुकर्रर कहा गया। मगरूर खुदनुमा कभी खुद सर कहा गया, और मैं मोम था मगर मुझे पत्थर कहा गया, और ताले मेरी जुबान पर लटका दिए गए, फिर उसके बाद मुझसे मुकर्रर कहा गया, फिर उसके बाद मुझसे मुकर्रर कहा गया। और काश मनमानियों का मौसम हो, काश मनमानियों का, काश मनमानियों का मौसम हो, रंग सामानियों का मौसम हो, रंग सामानियों का मौसम हो, और उलझने उलझनों से उलझी रहे, उलझने उलझनों से उलझने उलझनों से उलझी रहे, हम पे आसानियों का मौसम हो, काश मनमानियों का मौसम हो, रंग सामानियों का मौसम हो, और उलझने उलझनों से उलझी रहे, हम पे आसानियों का मौसम हो, और मसले प्यार से निमट जाएं, मसले प्यार से निमट जाएं, फिर न कुर्बानियों का मौसम, मसले प्यार से निमट जाएं, फिर न कुर्बानियों का मौसम हो। और एक गजल के चंद शेर आपकी इजाजत से, कि कितना सादा है फसाना मेरी तन्हाई का, कितना सादा है फसाना मेरी तन्हाई का, और इसमें किरदार है तन्हा मेरी तन्हाई का, इसमें किरदार है तन्हा मेरी तन्हाई का, और आईना जब कभी तन्हाई का देखा तो खुला, आईना जब कभी तन्हाई का देखा तो खुला, मेरे जैसा है सरापा मेरी तन्हाई का, आईना जब कभी तन्हाई का देखा तो खुला, मेरे जैसा है सरापा मेरी तन्हाई का, मेरे जैसा है सरापा मेरी तन्हाई का। और शेर है कि
यूं अकेले में मिला कर न मुझे ऐ दुनिया, यूं अकेले में मिला कर न मुझे ऐ दुनिया, तुझ पे पड़ जाए न साया मेरी तन्हाई का। यूं अकेले में मिला कर न मुझे ऐ दुनिया, तुझ पे पड़ जाए न साया मेरी तन्हाई का। और मांगती फिरती हैं खैरात किसी महफिल की, मांगती फिरती हैं खैरात किसी महफिल की, मेरी आंखों में है कासा मेरी तन्हाई का, मेरी आंखों में है कासा मेरी तन्हाई का। और शाख दर शाख वो चर्चे नहीं परवाजों के, शाख दर शाख वो चर्चे नहीं परवाजों के, हर परिंदा हुआ तन्हा मेरी तन्हाई का, हर परिंदा हुआ तन्हा मेरी तन्हाई का। और एक मुद्दत हुई पर याद है अब तक मुझको, एक मुद्दत हुई पर याद है अब तक मुझको, मेरी दहलीज पे सजदा मेरी तन्हाई का। एक मुद्दत हुई पर याद है अब तक मुझको, मेरी दहलीज पे सजदा मेरी तन्हाई का, मेरी दहलीज पे सजदा मेरी तन्हाई का। शेर है कि हफ्स इतना है, हफ्स इतना है कि मर जाए ना तन्हाई मेरी, तन्हाई मेरी, बड़ा बड़ा हफ्स इतना है कि मर जाए ना, हफ्स इतना है कि मर जाए ना तन्हाई मेरी, कोई तो खोले दरीचा मेरी तन्हाई का। हफ्स इतना है, हफ्स इतना है कि मर जाए ना तन्हाई मेरी, कोई तो खोले दरीचा मेरी तन्हाई का। और ऐ फलक तेरी भरी बज़्म भी खाली हो जाए, ऐ फलक तेरी भरी बज़्म भी खाली हो जाए, टूट जाए जो सितारा मेरी तन्हाई का। ऐ फलक तेरी भरी बज़्म भी खाली हो जाए, टूट जाए जो सितारा मेरी तन्हाई का। और कोई तो बात है शौकत मेरी तन्हाई में, कोई तो बात है शौकत मेरी तन्हाई में, मौत किद है जो जमाना मेरी तन्हाई का। कोई तो बात है शौकत मेरी तन्हाई में, मौत किद है जो जमाना मेरी तन्हाई का। इतना सादा है फसाना मेरी तन्हाई का, इसमें किरदार है तन्हा मेरी तन्हाई का। अब मैं गुजारिश करूंगा आज के मेहमान दूसरी जनाब प्रोफेसर सलीम हाशमी साहब को कि वो अपने मैं तो कह रहा था एक और इतनी खूबसूरत शायरी पंजाबी एक सुना देता हूं, पंजाबी सुना देता हूं। शौकत साहब की बात तो क्या करेंगे, चल बिल्कुल छोटी बहन में कि वो बता रहे थे कि इतवार को यहाँ शेष होती है तो सवाल ऐसे भी बनता है कि जिन्हें अख विच गम दे मोती, जिन्हें अख विच गम दे मोती, सारे मेरे कम दे मोती। जिन्हें अख विच गम दे मोती, सारे मेरे कम दे मोती, ते किधरे किधरे हीरे लबन, किधरे किधरे हीरे लबन, किधरे किधरे जम दे मोती। नजर है किधरे किधरे हीरे लबन, ते किधरे किधरे जम दे मोती, ते अखां दरिया बन जावन ते, अखां दरिया बन जावन ते, किस तरह फिर थम दे मोती। अखां दरिया बन जावन ते,
किस तरह फिर थम दे मोती वाह वाह और इंज पलकां ते हंजू जीवे जी में वाह 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 इंज पलकां ते हंजू जीवे फुल्लां ते शबनम दे शबनम दे मोती वाह 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 बड़ा गहरा इंज पलकां ते हंजू जीवे फुल्लां ते शबनम दे मोती ते वेखी किधरे रोल न देनी लोग वेखी किधरे रोल न देनी मेरी अख दे नम दे नाम दे मोती वाह 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 नाम दे मोती बड़ा गहरा वाह वाह वेखी वेखी किधरे रोल न देनी मेरी अख दे नम दे मोती वाह वाह ते मुख्तार कीता कि लोकां पाने शेर ते गज़लां लोकां पाने शेर ते गज़लां नाज दे लईने गम दे मोती वाह 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 लोकां पाने शेर ते गज़लां नाज दे लईने कम दे मोती जिन्ने अख विच गम दे मोती सारे मेरे कम दे मोती मैं गुजारिश करूंगा जनाब प्रोफेसर सलीम वाजपेयी साहब को पैमाने रूफी आज के इशारे के अपना कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह साहिब सदर इजाज़त से और अगर मैं बाबाए सहाफ़त चकवाल को बजा होगा कि बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई है। मैं दो बातें करूँ फिर मैं शायरी मेरी ये पता है लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ पिछली दफ़ा आए थे और मैं समझता हूँ कि अहले चकवाल ने जो पजीराई की थी माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुझे लगता है ये मोहब्बत या मेरे दिल की है या आपके दिल की है ये दोबारा खींच लाई क्योंकि उसके बगैर आने का कोई सवाल शहर साहब का ज़रा नवाजी है इनका खुलूस है इनकी मोहब्बत है जिन्होंने हम सबको इकट्ठा किया आपको माइल किया बहुत अच्छे जी आज की फिर वही रेत वही सहरा फिर वही रेत वही सहरा है फिर उसी लू का वही जोगा फिर वही रेत वही सहरा है फिर उसी लू का वही जोगा है फिर वही प्यार जुदाई भी वही फिर वही प्यार जुदाई भी वही बैठ के फूलों में फिर रोना है बैठ के फूलों में वाह 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 बैठ के फूलों में फिर वही सहरा है फिर उसी लू का वही चौंका है क्या बात है फिर वही प्यार जुदाई भी वही बैठ के फूलों में फिर वही रात का वक्त तो फिर रात रहे रात का वक्त तो फिर रात रहे दिन में रातों का समा होना है दिन में रातों का समा होना है बैठकर कितनी ही सोचें सोचूं बैठकर कितनी ही सोचें सोचूं दिल में ये बात कि क्या होना है एक कसक दर्द घुटन तन्हाई एक कसक दर्द घुटन तन्हाई ये सफर ऐसे अदा होना बहुत अच्छे तन्हाई ये सफर ऐसे अदा होना है आबिदिक शख्स से मिलना है मुझे आबिदिक शख्स से मिलना है मुझे और फिर उससे जुदा होना है फिर वही रेत वही सहरा उसी लू का वही चौका दो तीन शेर बिस्मिल्लाह इरशाद और किसी वक्त लिखे थे क्योंकि कैफियत होती है तो आदमी लिख देता है फिर बाद में सोचता है बिस्मिल्लाह जाता हूँ अपनी किस किस बात को वाह अपनी किस किस बात को सोचे छोटे ज़हनों वाले को किस किस बात को वाह 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 आकर किस किस बुत को पूजे क्या बात है छोटे ज़हनों वाले आकर किस किस बुत को पूजे छोटे ज़हनों वाले वाह मुंसिफ हर एक शख्स यहाँ मुंसिफ हर एक शख्स यहाँ मुजरिम छोटे ज़हनों वाले छोटे ज़हनों वाले
अपनी नाक कहाँ तक रगड़े हाँ। छोटे जहनों वाले बहुत अच्छे। अपनी नाक कहाँ तक रगड़े छोटे जहनों वाले छोटे ज़हनों वाले लोग, वाह बहुत छोड़ अच्छे। दिया तुझको भी आकर दिया तुझको तुझको भी आकर आखिर और नतीजा पाया ये पाया ये छोड़ दिया तुझको भी आखिर और नतीजा पाया ये अपने जैसों को ही चाहिए हाँ। छोटे जहनों वाले अपने जैसों को ही चाहिए छोटे जहनों वाले बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आबिद अपना जुर्म ही क्या था सुभान अल्लाह, सुभान जुर्म अल्लाह। ही जुर्म ही क्या था बस ये सोचते उम्र कटी उम्र कट गया बस ये सोचते उम्र कट कटी गया सोचे पूछे फिर ना समझे हाँ। छोटे से अरे वाह बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए। सोचे फिर ना पूछे फिर ना समझे। समझे छोटे छोटे से दिन वाले लोग, बड़ा अच्छा, वाह, वाह, वाह। अपनी किस किस बात को सोचे हाँ। छोटे जहनों वाले लोग वाह, वाह, वाह। आखिर किस किस बुत को पूजे हाँ। छोटे जहनों वाह, वाह, वाले वाह, वाह, वाह। बहुत अच्छा जी ये बहुत देखिए अच्छा आपको और अब मैं आज की मुशायरे की सदर मोहतरमा नीम समंदर साहबा से गुजारिश है कि वो अपना सदारती खुतबा भी और अपने सूरत शेरों से मिलवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करने से पहले एक शेर जो सुनाऊंगी वो आप सब लोग अपने ज़हनों में रखिएगा। जी माशाल्लाह ये जो खाक से उड़ती हुई नजर आती है सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। ये जो खाक से उड़ती हुई नजर आती है तस्नीम तस्लीम वाह 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 रेत की शक्ल में होता है सब सहराओं का शोर। वाह 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 रेत की वाह वाह फिर पड़े नहीं वाह वाह शक्ल में वाह 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 ये जो धूल सी उड़ती हुई नजर आती है तस्नीम वाह वाह ये जो धूल सी उड़ती हुई नजर आती है तस्नीम रेत की शक्ल में होता है सब सहराओं का शोर। वाह 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 बड़ा अच्छा जी वाह 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 क्या आप सब जितने इधर बैठे हुए हैं मैं सबसे इजाजत चाहती हूँ बात करने के लिए। मेरे लिए आप सब सदर हैं और इस चकवाल के एक एक बंदे को मेरा सलूट है अदब का काम कर रहा है। और यकीन करें कि इसका सेहरा जो है ना मेरे भाई को जाता है ये कलीम साहब बैठे हैं और बड़ी कोशिश से बड़ी मेहनत से पहले रास्ते बंद हो गए थे हमें पहले आना था यहाँ पहले आना था तो रास्ते बंद हो गए हम नहीं आ सके लेकिन भाई ने हिम्मत नहीं आ रही उन्होंने कहा जाना ही जाना है। बहुत अच्छे और ये ख्वाजा साहब जो हैं इनके बारे में जो इन्होंने मुझसे बातचीत की मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं खराज तहसीन के लिए कहाँ से आप यकीन करें मेरा ये कलीम भाई जो है ना बहुत खुद भी बहुत अजीम इंसान है लेकिन यहाँ के एक एक बंदे की तारीफ करते हैं और खुश होते हैं और बताते हैं कि मेरे गांव के लोग कैसे। मैं इनकी अजमत को सलाम करती हूँ जो ये मुझे यहाँ लेके आए तो आप लोगों से मुझे मिलवाया और मुझे पता चला कि यहाँ के लोग नहीं हैं ऐसे इंसान हैं जिनमें रब की शान नजर आती है पहचान नजर आती है। ये मैं अपने दिल से ये बात कह रही हूँ कि मुझे रब की शान और पहचान नजर आती है एक बंदे में। You are very much right. You are very much right. थैंक यू। वो जो मैं कह रहा था कि ये हैरत गैर सरजमीन है तो मैडम ने तस्दीक कर मेहरबानी की मेहरबानी। अब मैं कुछ कोशिश करती हूँ। यूं भी किया है मैंने यूं भी किया है मैंने तमाशा तमाम दिन वाह 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 जी वाह वाह यूं भी किया है मैंने वाह 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 थोड़ा माइक के आगे थोड़ा माइक के आगे जी यूं भी किया है मैंने तमाशा तमाम दिन
पानी में आफताब उतारा तमाम दिन। तमाम पानी में आफताब, बड़ा अच्छा, पानी में आफताब उतारा तमाम, बड़ा अच्छा। मैं भी तो सारी रात झुलसती रही यहाँ, मैं भी तो सारी रात झुलसती रही यहाँ, झुलसा जो तेरी याद का झोंका तमाम। बदली हुई फजा है कि बदली हुई हवा, बदली हुई फजा है कि बदली हुई हवा, होता रहा है मुझको ये धोखा तमाम। तमाम होता रहा है, बड़ा चाहिए, होता रहा, बदली हुई फजा है कि बदली हुई हवा, होता रहा है मुझको ये धोखा तमाम। वो शहरे नामुराद के रास्ते सभी थे बन। क्या 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 मिसरा है? ये जगह पे खबर को जो पूरा रास्ते सभी थे बन। देखा है मैंने तेरा ही रास्ता तमाम। ये तो किसी के दिल की आवाज आपने कह दिया। शहरे नामुराद के रास्ते तमाम, देखा है मैंने तेरा ही रास्ता तमाम। बहुत अच्छे, बहुत तस्नीम मेरे हाथ से वो भी निकल गया, तस्नीम मेरे हाथ से वो भी निकल गया, जो पल किसी के वास्ते रोका तमाम। तस्नीम मेरे हाथ से वो भी निकल गया, तस्नीम मेरे हाथ से वो भी निकल गया, जो पल किसी के वास्ते रोका आप सबकी इजाजत से अर्ज करती हूँ कि पुरसशे हाले गम से क्या होगा, पुरसशे हाले गम से क्या होगा, इस फरेबे करम से क्या होगा, मेरा ज़ौक़े सफर सलामत है, राह के पेचो खम से क्या ये आपकी नजर है। पुरसशे हाले गम से क्या होगा, इस फरेबे करम से क्या होगा, मेरा ज़ौक़े सफर सलामत है, राह के पेचो खम से क्या होगा। हमने हंस हंस के गम उठाए हैं, हमने हंस हंस के गम उठाए हैं, वो समझते थे हमसे क्या हमने हंस हंस के गम उठाए हैं, वो समझते थे हमसे क्या होगा। हर्फ आए न ज़ब्त पे कोई, दोस्तों के सितम से क्या एक और गजल कि ज़मीं को ये गुमा होने लगा है, होने लगा है, वो मेरा आसमान होने लगा, वो मेरा ज़मीं को ये गुमा होने लगा है, वो मेरा होने लगा है, सितारे चमकने लगे हैं आँखों में, सितारे चमकने लगे हैं आँखों में, चांद मुझ में आया होने लगा है,
होने लगा है। बात की रात क्या जी बड़ा अच्छा है और शेर बाबा देखिएगा कि जिंदगी यूं है हाँ कि जिंदगी तो है। तू है तू है सादा और वाला वाह 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 जिंदगी यूं है कि जिंदगी तू तो है है, वाह वाह वो जिंदगी का जहां होने लगा है वाह वाह बहुत अच्छे वाह वाह बहुत आला जी वाह वाह जिंदगी वाह वाह शेर तवज्जो तलब है। जी बिस्मिल्लाह करके कत्ल मेरे अरमान तस्लीम, करके कत्ल मेरे अरमान तस्लीम, यूं मेरा निगहबान होने लगा है वाह 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 बहुत आला जी बहुत होने लगा है ज़मीं को ये गुमा होने लगा है वो मेरा आसमां होने लगा है क्या बात है बेटा बहुत अब मैं पंजाबी का कुछ में तो मेहमान है पंजाबी में कोई लिमिट नहीं बहुत जरूरी वो दुपट्टा वो जो रंग वो जी जी हाँ नज़म दा सिरनामा है चार। इस चार ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। इधर मैडम का खुशी चढ़ी चाह चढ़िया ठीक है चाह विच चाह मिक्स रंगा में दुपट्टा केड़े रंग दा क्या बात ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਚਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਲਾਮ ਲਿਖਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਨਦੀਮ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੁझसे नहीं लिखा जाएगा। बाबा ने कहा कि तू ना उर्दू च लिख के ना पंजाबी च कन्वर्ट कर ते सब तो पहले मैं ए नज़म लिखी ते ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ वो हज़ीर कादरी साहब का तारुफ करवा दे। जी जी नाले एक होर गल दसा कि अजीम कादरी मेरा ख्याल है पाकिस्तान वो मेरे ताया अबू और 6 भरा सन वो तो सब तो छोटे दी मैं बेटी हां ते ये तो पता है कितनी फिल्मां दे गाने लिखे उन्होंने 12000 गाने लिखे ते किन्नियां फिल्मां दे मुकालमे लिखे ते किन्नियां फिल्मां उन्होंने आप बनाईयां उन्हां दे मुसन्नफ हज़ीर कादरी ते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे ब्लड विच उन्हां दा खून नजर आ रहे हैं पंजाबी का जरा पहली लाइन बोलती है वो लाइट बन के दस जी मैडम ते हाँ अर्ज करनिया कि रंगा में दुपट्टा केड़े रंग दा सेलियो रंगा में दुपट्टा केड़े रंग दा सेलियो पीला रंग भुख ने चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ पीला रंग भुख ने चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ नीला रंग हिजर ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ नीला रंग हिजर ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੁਬਾ ਰੰਗ ਰੁੜ ਪੁੜ ਗਿਆ ਏ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾ ਰੰਗ ਰੁੜ ਪੁੜ ਗਿਆ ਏ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੀ ਸਾਵਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨ ਠਾਰ ਰੰਗ ਲੁੱਟਿਆ ਸਾਵਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨ ਠਾਰ ਰੰਗ ਲੁੱਟਿਆ नफरत साथ शरीके वाली लो ने काला रंग ले गए दर्दां दे मातमी काला रंग ले गए दर्दां दे मातमी तेनी दुपट्टे लई रंग केड़ा बचिया चिट्टा सी दुपट्टा मेरा चिट्टा रह गया हां मेरा चाह सी बस चाह रह दुपट्टा मेरा चिट्टा रह यादगार मुशायरा जी माशाअल्लाह
बकरी जी चीज है पर सुनाना चाहनी हूं पता नहीं तो अच्छी लगती है सॉरी मेरा गला खराब सच सच बोल लेंदे ने हरूफ सच बोल लेंदे ने हरूफ हां भेत भी खोल लेंदे ने हरूफ भेत भी खोल लेंदे ने हरूफ जो कुछ जबान कह नहीं सकती जो कुछ जबान कह नहीं सकती आप ही आप तोल लेंदे ने हरूफ वाह 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 भी आप तोल लेंदे ने बड़ा शायरी वाह वाह बड़ा अच्छा वाह वाह कोई लिखारी मिट्टी लिख जावे हां लिखारी मिट्टी लेके जाओ कोई लिखारी मिट्टी लिख जावे मोती रोल लेंदे ने हरूफ वाह 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 जी वाह मोती रोल लेंदे ने वाह 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 हरफा नाल तू मैं नथी जाइए हां हरफा नाल तू मैं नथी जाइए कि डा बोल बोल लेंदे ने हरूफ वाह 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 बड़ा शायरी वाह वाह कितना वाह वाह कुछ शहद ते कुछ जहर तस्नीम हां कुछ जहर ते कुछ शायद नहीं सॉरी कुछ शहद ते कुछ जहर तस्नीम विच हयाती कोल ले और नहीं हरूफ वाह बेटे आती वाह 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 बड़ा शायरी वाह 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 बड़ा शायरी वाह 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 अच्छा दिसंबर चढ़िया सॉरी पंजाबी दी नज़म दा सिरनामा है कोरा कोरा हां दिसंबर दी सर्दी दा कोरा कोरा लुगी लुगी सड़क ते फिरदा वाह वाह आराम हो गया वाह वाह जी वाह वाह मैं वाह दिसंबर दी सर्दी दा कोरा लुगी लुगी सड़क ते फिरदा राह मैं लुगी मेरा चुग्गा लुगा मैं लुगी मेरा चुग्गा वाह जी वाह मैं लुगी मेरा चुग्गा लुगा मेरी कुली दे शीशे उत्ते आके रुक गया वाह वाह जी वाह मैं उंगली नाल ओदे उत्ते एक नाम लिखिया जेड़ा भार दे नाल ही मिट गया मैं उंगली नाल ओदे उत्ते एक नाम लिखिया जेड़ा भार दे नाल ही मिट गया वेला लम्मियां जुदाइयां विच कट लिया वाह वाह वेला दिसंबर दी सर्दी दा कोरा मेरे दर्द दे भी दर्द जगा गया दिसंबर दी सर्दी दा कोरा मैनू एक बारी फेर रवा गया आज की दिसंबर का कोरा ही बड़ा और आज के इस मुशायरे का नाम दिसंबर के कोरे थे और मैं बिल्कुल अल्लाह बहुत बड़ा है मैंने शुरू में ही कह दिया था कि ये आज चकवाल की तारीख का एक बड़ा मुशायरा होने जा रहा है मेरा यकीन और मेरा ईमान और ये शाह मुराद की धरती पे मेरा ये और मैडम के फिर ये जो ख्यालात और चकवाल के हवाले से तो एक दफा फिर मेरे उस फतवे की तस्दीक हो गई है कि ये हैरत अंगेज सरजमीन है ये आखिर में मैं तमाम जो खासकर मेहमानों का तो शुक्रिया है ही और सारे जो ये एक तारीख साल मुशायरे के आप ये तारीख लिखी जा रही है ये आपको तारीख जो है ना लिखी भी जा रही है महफूज हो रही है आप ये आप शाम को रात को ऐसे बटन दबाए आते बटन ये पूरी दुनिया में ये आज का जो मुशायरा ये क्लिक पे ये दस्तयाब होगा तो मैं तो फिर और अभी मैडम ने जो साहिर कलीम जान के हवाले से और दोस्तों ने जो उसका किया तो हमने पहले ही देखे ना ये ऐसे लोग यकम को नहीं आ सके अल्लाह का हुक्म ही नहीं है आठ को भी आना होगा धोंदे जी शौकत साहब की तबीयत खराब है ये सारे मामला मौजूद है ये सारी दीवारें और सब मेहमानों को ये ले आए हैं तो हमने इनकी वो इन्होंने कहा जो हिंदुस्तानी फिल्म की नगमा भी निकी जी गल है आज अभी इन्हों की इस सारा कोशिश आ रहे हो अभी परे चाहे भी पियांगे धन चौरासी अवार्ड कलीम साहब जान होती है
ये मैंने तो फोन करते हैं लाहौरों महीना पहले वो बाबर साहब आदमी तफीना अदब तस्नीम अदब मैडम का भी जिक्र किया सारे दोस्तों का अभी अवार्ड देना है तुम्हें तो मैं कहा यार मेरा तो चकवालों निकलना ही नहीं होता पिंडी नहीं जाना होता तो लाहौर के ध्यान है कोई अवार्ड देना तो फिर चकवाल ही आगे दो आपका जो कद है या आपका आदमी एक काम है वो इतना बड़ा था कि हम खुद चल के आए और ये बिल्कुल ये मैं कहता हूँ कि ये इतना बड़ा मतलब है ये मुझे तमगा इम्तिहान मिलने की इतनी खुशी नहीं है जितना ये आलमी तबीना अदब और ये तस्मीर अदब के जो अभी अवार्ड अभी दिए जाएंगे ना ये मेरे लिए तमगा इम्तिहान में बड़े अवार्ड है और ये और ऐसे अमीम लोग खुद चल के इधर चकवाल प्रेस क्लब तो ये मेरा फिर ईमान मजबूत हो गया कि ये चकवाल प्रेस क्लब जो है ये इल्म अदब का गहवारा है और ये एक बिल्कुल तारीख है और ये अल्हम्दुलिल्लाह चकवाल के 17 लाख अवाम की दुआएं प्रेस क्लब के साथ है कि आप जैसे लोगों की जुबानी का शरफ हम हासिल करते हैं। हमारा जी अभी ये ब्रेक होगा थोड़ा उधर